नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका बेंगलुरु के एकेडमिक काउंसिल मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया। जिले भर में 37,689 मामलों में 15.32 करोड़ का निपटारा, NYS के कनकट्टे ने कहा। बेंगलुरु दुकानदार से मारपीट विरोध के दौरान तेजस्वी सूर्या, शोभा करंदलाजे हिरासत। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि KRS काबिनी जलाशयों में पर्याप्त पानी है। आज सेलम का मेरा रमेश नहीं है, बीजेपी नेता को याद कर इमोशनल हुए पीएम मोदी। CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार से मांगा जवाब, 3 हफ्ते का दिया वक्त। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के प्रसिद्ध नूर कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका बेंगलुरु की एकेडमिक काउंसिल मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान के नॉमिनेट होने की खुशी कॉलेज में त्योहार का माहौल बना रहा। आज दोपहर में नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता और केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने यूसुफ खान का सम्मान किया। इसके अलावा कॉलेज के शिक्षकों ने भी यूसुफ खान को बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। सबसे पहले हमारे चेयरमैन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान साहब का। उनकी बदौलत आज मैंने ये पोस्ट पाया है। सेकंड मैं मोहम्मद नवाज खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ के साथ हमारे फेरोज खान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये सभी की आशीर्वाद से, दुआओं से आज मुझे पोस्ट मिला है। इंशाल्लाह मैं इसका सभी कॉलेज को फ़ायदा पहुंचाऊंगा, इसका अच्छे से काम करूंगा। आज इसका यूनिवर्सिटी के नाम से मैं काम करूंगा। कर्नाटका मुझे इंस्पेक्शन के लिए डिप्यूट किया जाता है। आई फाइट फॉर कॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट के लिए फाइट कराऊंगा मैं सभी के लिए। ठीक है, ये बोलते हुए धन्यवाद करूँगा। Seated on the chairs, my near and dear staff members, that is my friend, colleagues and dear students. We know that this is the month of Ramadan, and Ramadan comes with its blessings and mercies. And today we are seeing that Sri Mohammad Yusuf Khan, the vice principal of Suleiman College and the professor, been promoted as professor, and he has been nominated and promoted as one of the members, one member of the Academic Council of Rajiv Gandhi Medical Science Bangalore. Dear students, we know that how he got it. It is only the hard work, the struggle and the perseverance that are taken by a person which elevates a person into high skies to see. I am very happy. Today, 19th March 2020, it is the most important historical date and day in the history of Bidar. Because today in the afternoon itself, we got the order of being nominated as the member, Yusuf Khan being nominated as the member of the Rajiv Gandhi University. It is a very good news for us. So our chairman, he has placed a right man at a right place. This is because Yusuf Khan, he is a young and energetic person. He always wants the welfare of the students and the students also, you see. So, my dear students, you should also learn a lesson by his life and achievements. This is a great achievement. In the history of Hyderabad, Karnataka, Mr. Yusuf Khan, he is the first member from Bidar to be nominated as the member of the Rajiv Gandhi University. So, his nomination, it has elevated not only his name, but also the name of our respected chairman,
Dr. Muhammad Ayaz Khan, the chairman of the dynamic personality of the Board Education and Trust from my friends. I am very happy and I pray to God that God bless him. Our chairman also and Yusuf Khan also and you all also with health and happiness in your life. With this thing I end my speech. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಂಡು राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने 16 मार्च 2024 को राष्ट्रीय अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीदर जिले को आयोजित करने का निर्देश दिया. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37,689 से 15 तक का निपटारा किया गया. 32,91,627 रुपयों और 16,638 मामलों का निपटारा किया गया है. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एसके कनकटे ने कहा कि 10,74,68,581 रुपए की वसूली की गई है और मुआवजा प्रदान किया गया है. यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में दी. कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ದಿನಾಂಕ 16/3/2024 ಜರುಗಿದ್ದು, ಈ ಸಲದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 16,638 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,74,68,581 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ರಿಕವರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 21,041 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 4,58,23,046 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಲದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೂ मंगलवार 19 मार्च को बेंगलुरु के नागर्थपेटे में सिद्धन्नाग गली में एक दुकानदार के समर्थन में हिंदू समर्थक समूह द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिस पर रविवार 17 मार्च को अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने के लिए कथित तौर पर व्यक्तियों के एक समूह द्वारा हमला किया गया था. सोमवार 18 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि घटना का कोई धार्मिक एंगल नहीं था. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और अन्य प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि पुलिस ने मौजूदा आदर्श आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं दी थी. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का जाप किया. बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि कुल 40 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है. एक साथ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, लेकिन
भीड़ को तितर बितर करने के लिए तुरंत एहतियाती कदम उठाए गए। कमिश्नर ने कहा, हमने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत 40 लोगों को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एहतियातन हिरासत में ले लिया है। सर मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उड़ाने वाला ऐसा। शहर में चल रहे जल संकट पर निवासियों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पीने के लिए पर्याप्त पानी है, क्योंकि केआरएस और काबिनी जलाशयों में भंडारण क्रमशः 11.02 टीएमसीएफटी और 9.02 टीएमसीएफटी है। वह शहरी विकास विभाग और बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों के साथ पानी की कमी से निपटने पर एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बोल रहे थे। सिद्धरामैया ने पीने के पानी की कमी के लिए महादेवपुरा, केआरपुरम, आरआर नगर और बोमनहल्ली जैसे बीबीएमपी बाहरी सीमा क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने वाले बोरवेल की विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 14,000 सरकारी बोरवेलों में से 6,900 सूख गए हैं, जिससे बीबीएमपी में विलय किए गए 110 गांव में से 55 प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को और अधिक बोरवेल खोदने, केसी वैली की 14 प्रमुख झीलों को भरने और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से टैंकर किराए पर लेने का निर्देश, क्योंकि प्रतिदिन 2,600 मिलियन लीटर एमएलडी पानी की दैनिक आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि वर्तमान में बीडब्ल्यूएसएसबी कावेरी लाइन के माध्यम से 1,470 एमएलडी और बोरवेल के माध्यम से 650 एमएलडी की आपूर्ति कर रहा है। हालांकि बाहरी क्षेत्र में 500 एमएलडी पानी की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों की देखभाल बोरवेल द्वारा की जाती थी। जनता को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। पार्टी के बयान में कहा गया है कि जनता दल सेक्युलर जेडीएस के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और कोर कमेटी के सदस्यों ने भाजपा द्वारा कर्नाटका में 20 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की है। बैठक में जेडीएस नेताओं ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि घोषणा करते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया और भाजपा नेता कोलार निर्वाचन क्षेत्र जेडीएस को नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय जेपी भवन में आयोजित कोर कमेटी के सदस्यों और चुनाव प्रभारियों व सह प्रभारियों की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री, जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच डी देवेगौड़ा और पूर्व प्रमुख की मौजूदगी में नेताओं ने अपना असंतोष व्यक्त किया। मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी, बैठक में एक एक कर नेताओं ने अपनी राय रखते हुए कहा, बीजेपी शुरू से ही हमारी और हमारी पार्टी की उपेक्षा कर रही है। बीजेपी हमें छोड़ रही है, चुनावी सभा और प्रचार में उपेक्षा कर रही है। बीजेपी हमें किसी भी बैठक के लिए नहीं बुला रही है। भाजपा ने 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। जेडीएस नेताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि भाजपा ने जेडीएस के वरिष्ठों को विश्वास में नहीं लिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तमिलनाडु के सलेम में रैली को संबोधित करते हुए इमोशनल हो गए। भाजपा के राज्य महासचिव ऑडिटर वी रमेश को याद करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं सेलम में हूं, मुझे ऑडिटर रमेश की याद आ रही है। आज सेलम का मेरा वो रमेश नहीं है। रमेश ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। वह हमारी पार्टी के समर्पित नेता थे। वह एक महान वक्ता और बहुत मेहनती व्यक्ति। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बता दें कि 2013 में तमिलनाडु के सलेम में कथित तौर पर ऑडिटर वी रमेश की हत्या कर दी गई थी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष केएन लक्ष्मण को भी याद किया और कहा कि आपातकाल विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका अविस्मरणीय थी। आपातकाल विरोधी आंदोलन में लक्ष्मण की भूमिका और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी को हमेशा याद किया जाएगा।
राज्य में भाजपा के विस्तार में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में कई स्कूल भी शुरू किए। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस कानून को लेकर पिछले सप्ताह सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़ी करीब 237 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 3 हफ्ते 8 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें केवल 3 हफ्ते का वक्त दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, यह सीएए की किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें सामने आ चुकी हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को जोर देने में लगे हुए हैं। इसी बीच चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि राज ठाकरे भी जल्द ही एनडीए के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 48 लोकसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र देश में दूसरा सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। 2 सीटें मांग रही एमएनएस राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों की डिमांड कर रही है। इनमें से एक सीट दक्षिण मुंबई और एक मुंबई बाहर की जो गठबंधन में एडजस्ट हो सके मांगी गई है। माना जा रहा है कि एमएनएस को एनडीए में उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर दक्षिण मुंबई की एक सीट मिल सकती है। राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात के बाद इस फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने का एक फायरब्रांड नेता मिलेगा जो ठाकरे परिवार का ही है। दोनों के ही वोट बैंक हार्डकोर मराठी मनुष्य। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोगों से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना बीजेपी को उम्मीद थी। राज ठाकरे की पार्टी का प्रभाव मुंबई, थाने, कोंकण, पुणे, नासिक जैसे इलाकों में है जहां एनडीए को फायदा हो सकता है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन दोपहर 2 बजे अपनी 2 बेटियां जयश्री और राजश्री के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन जामा क्षेत्र से विधायक हैं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और झारखंड में चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री बनाए जाने के दौरान से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी। सीता सोरेन इस्तीफा के संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और उसी पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता सोरेन ने कहा, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और सक्रिय सदस्य हूं। वर्तमान में पार्टी की विधायक हूं। अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा दे रही हूं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर पेंच अभी भी उलझा है। अब वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि वो कांग्रेस को महाराष्ट्र में 7 सीटों पर समर्थन देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के रवैये को लेकर नाखुशी जाहिर की। चिट्ठी में आंबेडकर ने वीबीए और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अपनी रुचि जाहिर की। पत्र में आंबेडकर ने कहा कि वीबीए को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। आंबेडकर का कहना है कि वीबीए का प्राथमिक लक्ष्य बीजेपी आरएसएस गठबंधन सरकार को हराना है। चिट्ठी में आंबेडकर ने वीबीए और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अपनी रुचि जाहिर की। पत्र में आंबेडकर ने कहा कि वीबीए को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। आंबेडकर का कहना है कि
वीबीए का प्राथमिक लक्ष्य बीजेपी आरएसएस गठबंधन सरकार को हराना है। अम्बेडकर ने पत्र में लिखा है कि 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में आपसे राहुल गांधी से मिलकर खुशी हुई। हम व्यापक बातचीत में शामिल नहीं हो सके और इसीलिए मैं आज आपको लिख रहा हूं। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और वहां महाविकास अघाड़ी किसी भी चर्चा या बैठक के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी को आमंत्रित किए बिना लगातार बैठकें कर रही है। रमजान का महीना जारी है। इसी बीच सऊदी अरब की सरकार ने उम्रा करने को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। इसके तहत भारतीय श्रद्धालु भी रमजान के महीने में बार बार उम्रा नहीं कर सकेंगे। दरअसल रमजान में दुनिया भर से मुसलमान उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। रमजान की इस्लाम में महत्ता के चलते इस महीने में उम्रा करने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है। हज के उलट तीर्थयात्री अपने सऊदी प्रवास में जितनी बार चाहे उम्रा कर सकते हैं। ऐसे में लोग बार बार काबा पहुंचते हैं। इससे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ के बीच सऊदी सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा कि अब एक इंसान रमजान के महीने में एक बार ही उम्रा कर सकता है। गल्फ न्यूज के अनुसार सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने मुसलमानों को रमजान के महीने में उम्रा दोहराने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत मक्का में मौजूद श्रद्धालु इस महीने में केवल एक बार उम्रा कर सकेंगे। रमजान में आमतौर पर मक्का की ग्रैंड मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यह इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। गौरतलब है कि रमजान का महीना मुस्लिमों के लिए धार्मिक तौर पर श्रेष्ठ माह माना जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए रमजान में रोजा रखना फर्ज है और ऐसा विश्वास है कि इस महीने में इबादत का ज्यादा सवाब मिलता है। रमजान के महीने के बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जंगी अभ्यास में भी उत्तर कोरिया गंभीरता दिखा रही है। इन सबके बीच किम जोंग उन ने सियोल को निशाना बनाने वाली प्रणाली की प्रैक्टिस का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उन रॉकेट के दागे जाने की प्रैक्टिस का निरीक्षण किया, जिन्हें दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को निशाना बनाने के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक किम ने प्रतिद्वंदियों से बढ़ते टकराव के मद्देनजर अपने युद्ध निवारक उपाय बढ़ाने का संकल्प लिया। इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। केसीएनए के मुताबिक किम जोंग ने कहा कि दुश्मनों को यह समझाना जरूरी है कि अगर सशस्त्र संघर्ष और युद्ध छिड़ जाता है तो वे विनाशकारी परिणामों से कभी नहीं बच सकते। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका बैंगलोर के एकेडमिक काउंसिल मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया। जिले भर में 37,689 मामलों में 15.32 करोड़ का निपटारा NYSK कनकट्टे ने कहा। बैंगलोर दुकानदार से मारपीट विरोध के दौरान तेजस्वी सूर्या शोभा करंदलाजे हिरासत। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि KRS काबिनी जलाशयों में पर्याप्त पानी है। आज सेलम का मेरा रमेश नहीं है। बीजेपी नेता को याद कर इमोशनल हुए पीएम मोदी। CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार से मांगा जवाब, 3 हफ्ते का दिया वक्त। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।